Good morning, students. Students, we will discussing about that our constitution. It's chapter 1, our constitution. Any role of constitution? What is the role of constitution? So firstly, I am discussing about that what is the constitution of a country. You know very well that without constitution, no any country can operate. Yani like this, you can say the constitution of a country is set of written and unwritten rules and guidelines that help in the governing the country. संविधान, like this, constitution के बिना कोई देश पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो सकता. You know very well that India got freedom on 15th August 1947, but on that time India was not a sovereign republic country because we have not our constitution. So that's after a long time, yani after long time we create our constitution. Our constitutions came in force 26 Jan 1950. So you know very well that constitution is a set of written and unwritten guidelines that help in the governing the country. यानी संविधान जो है नियम समूह का संग्रह जिसमें संकलित है, वैसे आप उस संविधान की सहायता से देश पूर्ण रूप से संचालित होता है. यानी संविधान, हमारा जो संविधान है अलग अलग देशों के संविधान से, जैसे कहीं से नागरिकता फंडामेंटल राइट्स लिया गया, कहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया, कहीं से और सारे रूल्स रेगुलेशन लिए गए, यानी लाइक दिस अलग अलग कंट्री से हमारे लिए गए. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. तो वी विल डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So like this, it was in 1934 that the demand for a constituent assembly was made by the first time by the Indian National Congress. Like this, INC stand for Indian National Congress. Indian National Congress के द्वारा 1934 में एक सवाल उठा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की स्थापना की जाए, और 1946 में यह पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड हुई जुलाई अगस्त के समथिंग अप्रॉक्स, और दिस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्री इंडिया इन अगस्त 1947. First, various committees were set up to give their suggestion for making the constituent. These were Union Constitution Committee, Union Power Committee, and finally a drafting committee was appointed for making the constitution. The constitution was completed on 17th October 1949. On 26th November 1949, that the drafting committee, the chairman of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था. ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950. तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आज़ाद हुआ तो हम चाहते तो उस समय से थोड़े से समय में ही हम संविधान अपने देश में लागू कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ. क्यों? तो इसका एक कारण है
हालांकि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, यानी 2 years 11th month 18 days का पूरा समय लगा था। तो संविधान जो है, संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही क्यों लागू हुआ? तो इसका एक कारण है कि whenever the first Prime Minister of India was delivering the speech in Lahore program, it was date of 26 Jan and they demanded Swaraj. They demanded in that assembly, they declared that assembly Swaraj. That date was 26 Jan. That's why हमारे जितने भी देश के भावी नेता थे उन्होंने 26 जनवरी को ही उपयुक्त दिन माना और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। फिर यू कैन से दैट्स इंडिया इज ए सोवरजिन कंट्री। ओके, तो हमारा संविधान में द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर डायरेक्टली लिंक टू द पीपल्स वेलफेयर एंड इंटरेस्ट। प्रीएम्बल पार्ट 3 में आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, यानी पार्ट 3 इफ यू वांट टू नो इन अबाउट दैट फंडामेंटल राइट्स, सो दैट्स on the part 3 of the constitution you can get the all fundamental rights. In part 4 directive principle of the state policy, part 2 a fundamental duties and part 16th special provisions releasing to certain classes. Now you know very well that preamble of the Indian constitution has been described by the eminent lawyer N.A. Pakliwala as the identity card of the Indian constitution. Yani like this it is the identity card of our nation. In like this, without sovereign you can't say that India is a republic country. Like this, on this day we were full free from the slavers, यानी हम इस दिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों से आजाद हुए थे। तो इंडिया was to be an independent and sovereign republic and all powers and authority having its. Now I am coming fundamental rights. How many fundamental rights are there in constitutions? So fundamental rights part 3 of the constitution provides for the fundamental rights of Indian citizens. These are right to equality, यानी समानता का अधिकार इसमें प्राप्त है, चाहे if you are Hindu, you are Muslim, you are Sikh, you are any related to the religion, so that you have right to equality. Second, right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यानी आर्टिकल 19 to 22 में ये सारी चीज बताए गए हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। आर्टिकल 19 गारंटी द 6 फ्रीडम राइट्स फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया. दीज आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह. इन लाइक दिस राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यदि आपका कोई शोषण कर रहा है, इफ यू आर एक्सप्लॉयटेड बाय समवन सो दैट यू कैन स्पीक अगेंस्ट दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन आर्टिकल 23 सेज. 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको धर्म चुनने का अधिकार प्राप्त है. इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ हिंदू, the Muslim, the Sikh, the another religion, if you want to choose, so that you can choose, it is dependent on you. Now I am coming
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आपको संवैधानिक विचारों का अधिकार प्राप्त है। संविधान के तहत आप कोई भी, संविधान के दायरे में रह करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त है, यानी लाइक दिस आपको शिक्षा पाने का अधिकार, सांस्कृतिक विचारधारा रखने का अधिकार प्राप्त है। राइट टू लाइफ, आपको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। और राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। और राइट टू, पहले प्रॉपर्टी था लेकिन इसको अभी जो है हटा दिया गया है, इट इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड, सो दैट्स यू हैव नॉट स्टडीड इन अबाउट दैट राइट टू प्रॉपर्टी। तो these are fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, article, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, cultural and educational rights, right to life, right to education. These are fundamental rights and हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज माने कर्तव्य, हमारे जो फंडामेंटल, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या हैं? लाइक दिस, these are fundamental duties to abide by the constitution and respect the national flag and national anthem. You know very well that national anthem, yani like this, Rashtragan. Who wrote national anthem? R.N. Tagore wrote national anthem, and our national song is Vande Mataram. Vande Mataram is written by Bankim Chand Chatterjee. So these are the fundamental duties. We have to give the regards to our national song, national emblem, national anthem and national flag. Second thing, to defend the country. यदि कंट्री पे कोई संकट आता है तो हम उसके साथ खड़े रहें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। To safeguard public property. If someone is ruining the public property, so that you have to stop. Don't do this type. You should say that these are my all fundamental duties. Now, to protect and improve the natural environment, including lakes, rivers, wildlife, etc. इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इम्प्रूव करें, इसको सेफ रखें, क्योंकि ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है। यदि देश की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो हमारा भी नुकसान होता है। यानी हमारी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यदि भारत की जनता, भारत के लोग यदि इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूर्ण रूप से करें तो निश्चय ही हमारा देश बहुत आगे जा सकता है, हमारा देश का नाम रोशन हो सकता है और वैश्विक स्तर पर हम एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज द, according to population, India is the second largest country of the world, and according to area, India is the, according to area, India is the 7th largest country of the world, and according to population, India is the second largest country of the world. And now these are many classes: SC, ST, OBC, UR. SC stand for scheduled caste, ST stand for scheduled tribe, OBC other backward caste, and UR unreserved. So these are the special category, and in our constitution many consideration laws for the SC, ST and other caste. So UR refers to other caste, yani like this UR, it refers to upper caste, and SC, ST, these refers to lower caste. So you have to mention this in our constitution. These reservations are provided by the constitution for SC, ST and OBC, so that these categories do the work and get the job in Indian government. So now next, why are laws required? You know very well that no man can live alone. He is a part of society. It is essential that no individual group of individual behave in such a manner as to harm another member of the society.
नॉन डोमिनेंट ग्रुप कैन बी अलाउड टू ट्राई सब्जेक्ट टू लेस डोमिनेंट ग्रुप। सो लॉज, लॉ के बिना कोई देश संचालित नहीं हो सकता, यानी लॉ जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चों, चाहे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपको लॉ की आवश्यकता होती है, यानी कानून की आवश्यकता होती है, यानी आपकी नियम शैली की आवश्यकता होती है। तो लॉ यानी लाइक दिस वी आर स्टडिंग इन अबाउट दैट रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन you can't operate the country. In the absence of constitution, you can't operate the country. Like this, by the help of constitution, our countries operates. So that it is very initial things for our country. Understand? Now, what is dowry? Dowry को हम हिंदी में दहेज बोलते हैं, dowry non दहेज। It is the money, movable or immovable property and goods given by the bride's family to the groom at the time of marriage. यानी लड़कियों की जब शादी होती है तो शादी के समय जो हम ब्राइड ग्रूम को जो दहेज देते हैं, जो सामान देते हैं, उसको हम दहेज के रूप में जानते हैं। दिस इज एन ओल्ड कस्टम एंड इट इज सीन इवन टुडे। ये बहुत ही पुराना रीति रिवाज है कि लड़की की जब शादी होती है तो माता पिता अपनी लड़की को सारी भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं देते हैं ताकि मेरी बेटी और मेरे जो दामाद हैं वो जो है खुशीपूर्वक रहें। तो इफ इन एग्जाम इट्स कमिंग दैट्स डाउरी, तो यू विल से दैट्स डाउरी नॉन एज दहेज is the money, movable or immovable property and goods given by the bride's family to the groom at the time of marriage. Now I am coming, who makes law? Parliament makes laws. Understand? You will give the answer. And who gives authority to a law? The implementation of laws needs an authority and legitimacy so that the people on whom these are imposed by them. Now I am coming next, salt satyagrah, yani like Dandi March. You can say Dandi March was held in 1930 by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने लोगों के साथ अकेले अपने क्या बोलते हैं उसको, आश्रम से लेकर के उस डांडी तक यात्रा की थी। नंगे पांव महात्मा गांधी अपने लोगों के साथ चले थे और वहां जाकर के नमक कानून को तोड़ा था। खुद जो है नमक बनाई थी और उस अंग्रेजों के नमक बनाने के जो नियम थे उसको निषेध माना था और उनकी कानून को तोड़ दिया था। और जब इन सब चीज़ों को अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों ने जान लिया कि अब हमारी जो है इस देश में ज़्यादा दिन पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जो है बुलाया था। यानी लाइक दिस यू कैन से 6 अप्रैल एंड प्रिपेयर ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर हियर। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने अपने लोगों के साथ जाकर के समुद्र के किनारे समुद्र का जल लेकर के उससे अपने हाथों से जो है नमक बनाया था। यानी लाइक दिस, जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है बच्चों कि समुद्र का 1 लीटर पानी में 250 ग्राम नमक तैयार होता है। तो महात्मा गांधी ने अपने हाथों से पानी लेकर के उसे नमक में नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। और इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह प्रूव्ड बाय ए कॉर्नर स्टोन इन द फ्रीडम स्ट्रगल बाय इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। यानी लाइक सॉल्ट सत्याग्रह का सिर्फ सॉल्ट बनाना ही मूल उद्देश्य नहीं था, उनका ये मूल उद्देश्य था गांधी जी का। गांधी जी ये दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज अब तुम्हारी एक न चलेगी
ऑल इंडियंस आर ready to take the freedom from your slavery. और इंपैक्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा, असर पड़ा कि पूरी देश की जनता जो है गांधी जी के साथ हो चली और अंग्रेजों को लास्ट में देश छोड़कर जाना ही पड़ा। तो ये था रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन यू कांट हैंडलिंग द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। यानी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके कारण ही जो है हम कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।